This year, winter never felt like winters. कि साल के इस वक्त जो पहाड़ बर्फ से ढके होते थे, वो पहाड़ इस बार बिल्कुल सूखे पड़े हैं. The glaciers were melting very quickly. The mountains were dry, and we were losing hope. But almost at the end of the winters, the nature had some different plans. On 1st March, it started snowing again in the beautiful mountains of Upper Kinnaur, and it was an unexpected snowfall. और last time 1st Feb को snowfall हुआ था, and exactly after 1 month, we finally got some snow at the end of this winters. And today, me and my friend Dheeraj is going to hike to this very sacred peak called Dulmala. But before that, we are here to take blessings in this very sacred monastery. This is the monastery of the great mountain yogi, Lama Govind Ji. Hey guys, very good morning and happy snowfall from beautiful mountains of Kinnaur. Today it's 1st March और it's snowing nicely over here. और आज मैं अपने एक फ्रेंड धीरज भाई के साथ एक्सप्लोर करने आया हूँ फिर से अपने गांव की ये एक्सट्रीम माउंटेन्स, जहाँ हमने आपको लास्ट टाइम हिडन मोनेस्ट्री दिखाई थी और हमने एक आपको पीक के बारे में बताया था जहाँ हम नहीं जा पाए थे. टुडे वी आर गोइंग देयर. अभी हम हैं लामा गोविंद जी के मोनेस्ट्री में. कुछ देर यहाँ पर बैठकर दर्शन करके हम जाएंगे सीधा डुलमा पीक की तरफ. So before starting any journey, we should always take blessings from gods. So we are here in a very sacred monastery called Mirror Cave. This is the monastery of the great mountain yogi Lama Govind Rinpoche Ji, a great yogi who spent most of his life meditating and spreading Buddhist teachings in this part of Himalayas. कभी कभी मैं सोचता हूँ इस monastery का नाम Mirror Cave क्यों है, but मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला. But I know one thing, that it's very peaceful to visit any monastery. If you guys are coming here in winters, then आपको यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, but you can come here और यहाँ पर अंदर आप जाकर दिया जला सकते हो. और अभी हम यहाँ से ट्रैक करेंगे टू द टॉप, जहाँ हमने आपको लास्ट टाइम एक हिडन मोनेस्ट्री दिखाई थी, और उसके बाद हम जाएंगे डुलमा पीक की तरफ, which is at 14,500 feet. और मेरा सेकेंड टाइम एंड धीरज भाई का फर्स्ट टाइम. सो लेट्स सी आगे का दिन कैसा रहता है. So if you ever visit this place, let the Mirror Cave guide you to inner peace. It shows that the journey is not about finding yourself, but recognizing yourself in every surface. कुछ देर मोनेस्ट्री में वक्त बिताने के बाद हम चल पड़ते हैं डुलमा पीक की तरफ. वैसे मैं डुलमा पीक आज से पहले सिर्फ एक बार आया हूँ, but this is the place where I feel most alive. और मैं हमेशा से यहाँ विंटर्स में आना चाहता था, बिकॉज विंटर्स में ये ट्रैक बड़ा चैलेंजिंग होता है, एंड आई होप कि विंटर्स में दिखने वाला 360 व्यू हम आपको दिखा पाए. तो आफ्टर एन अमेजिंग वॉक हम पहुँच चुके हैं रोड के एंड पॉइंट पे, और यहाँ से हमारी प्रॉपर हाइकिंग शुरू होती है डुलमा पीक की तरफ. फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक सम रेस्ट हियर एंड फिर चलते हैं फटाफट समिट की तरफ, क्योंकि हमें मोनेस्ट्री भी जाना है एंड समिट भी. एंड ऐसे माउंटेन्स पे आप तभी आइए जब आपको रूट पता हो एंड यू नो द डेंजर्स ऑफ द माउंटेन, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो हमें स्नो स्टॉर्म फेस करना पड़ा था. So this time the weather is much better than last time. So आज हम समिट जाके ही रहेंगे. And after a short snack break, we started our trek again towards Dulma Peak. कुछ देर चलने के बाद हम काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं लाप्सा में. लाप्सा इज़ अ लैंडमार्क, और यहाँ से ऊपर की ज़मीन देवी देवताओं की ज़मीन मानी जाती है. So before entering the land of God, we took blessings from the mountain gods. And this is a very old ritual. जब भी लाप्सा आते हो तो आप यहाँ पर कुछ stones रखते हो, then you pray to the gods, and then you continue your trek towards Dulma Peak. Sometimes people ask me, why do you love hiking? And I have only one answer, that you will never find any sad faces on any mountain.
और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं चिला मोनेस्ट्री, which is a very sacred and a very hidden monastery in this part of Kinnaur. At 11,000 feet above from sea level, this monastery holds a special place in my heart because we used to come here as kids and those were the best time of our life. So I revisit these places to relive those moments. लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर वो जो मेमे होते हैं अंदर वो डोर खोल नहीं रहे। आई थिंक वो सोए होंगे बिकॉज स्नोइंग। आई थिंक अभी हमें सीधा समिट की तरफ जाना चाहिए एंड जब हम वापस आएंगे तो हम मंदिर दर्शन कर लेंगे क्योंकि हम उनकी नींद नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। कुछ देर चलते ही हमें काफ़ी ज़्यादा जुनेपर के ट्री मिलते हैं जिसे देवी देवताओं का पेड़ माना जाता है। और जुनेपर ट्रीज को फॉलो करते करते कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ के डॉग में। डॉग का मतलब होता है द होम ऑफ द शेफर्ड्स, यहाँ पर शेफर्ड्स अपनी बकरियाँ रखते हैं। They say the best adventures are the one you never planned for, and with this surprise snowfall, we will never forget this hike. And after spending some precious moments in the home of shepherds, we decided to click a picture to make this day and make this point memorable. क्योंकि यहाँ से आगे हम इस बार भी नहीं जा पाए। तो गाइज़ अभी हम यहीं पर थोड़ी देर बैठे हैं क्योंकि हम ऊपर तो जा नहीं सकते एंड दुलमा पीक थोड़ा सा ही ऊपर है। सेकंड टाइम भी हम दुलमा पीक नहीं पहुंच पाए गाइज़। सो आई होप थर्ड टाइम में पहुंच जाए। बट फ़िलहाल हम बैठे हैं इस छोटे से शेल्टर के पास जहां पर शेफर्ड्स अपनी बकरियां लेके आते हैं और यहां पर अपनी बकरियां रखते हैं। एंड समझ में आप यहां पे आओ तो यू कैन ऑल्सो कैंप हेयर। तो गाइस कुछ देर चिल करने के बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस नीचे चिला मोनेस्ट्री, चिला गुनबा की तरफ और वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे एंड देन घर निकल जाएंगे। बट स्नोफॉल काफ़ी बढ़ चुकी है। हम जहाँ से आए थे हमें अपने फुट मार्क्स भी नहीं दिख रहे हैं एंड दैट्स हाउ इट्स लुकिंग नाउ। And on my way back, I realized it's not always about the destination because sometimes we learn from the traveled path more than the places we reached. No grip. But this is the real adventure guys, जो आप फील नहीं कर पाओगे शायद स्क्रीन्स पे। But yes, these are the memories जो हमें अपने डेथ बेड पे याद आएगी क्योंकि तब शायद हमारी बॉडी केपेबल नहीं होगी इतने ऊपर आने की ऐसी कंडीशंस में। बट जब तक आप ये सब कर सकते हैं यू शुड डू इट बिकॉज ये पल दोबारा नहीं आएगा। और हमने वापस आने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अगर हम डुलमा पीक जाते तो शायद आज हम घर नहीं पहुंचते। अंधेरा होने वाला है और अभी भी बहुत लंबा रास्ता है कवर करने के लिए, तो हमें थोड़ी रफ्तार पकड़नी होगी। बट बर्फ के कारण वो भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या होने वाला था इस बात से हम इस वक्त पूरी तरह अनजान थे, लेकिन हम आने वाले 10 दिन बिना नेटवर्क और बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिताते हैं। बट ट्रस्ट मी, आई लिव्ड सम ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ इन दीज डेज। सो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी अमेजिंग से वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस जल्दी आपसे ऐसे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। टिल देन कीप लविंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।